We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks. 220,000 Americans dead. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America. You're the one that takes all the money from Wall Street. I don't take it. You have not released a single solitary year of your tax return. What are you hiding? I don't make money from China. You do. I don't make money from Ukraine. You do. I don't make money from Russia. Mute button must have made President Donald Trump absolutely uncomfortable. Although one can control his interruptions, but you can't control the lies and the falsehood he spreads all the time in almost every sentence. We will talk about it later. But first thing first, that is, it was a final debate. In this debate, Trump was advised to be sober and well-behaved. He tried to do it in a very, very hard manner, while Biden shined because of his gravitas. Mr. Trump was finding himself in a very uncomfortable situation. Anyway, the focus was coronavirus and who was responsible for this mess and what is the plan. This was the question posed by Christine Welker, who is a black woman whom Trump accused to be biased towards Democrat. Anyway, so कोरोना पर बात ये निकल करके आई कि ट्रंप ने कहा कि it will go away. ये बात वो 8 महीने में 38 बार बोल चुके हैं, फरवरी महीने से लेके अभी तक. उनके जो फैक्ट चेक का हिसाब लगाते हैं, उनके जो फॉल्सूट का हिसाब लगाते हैं, वो लोग बता रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में भी उन्होंने ऐसा झूठ बोला है. जो 4 अभी ट्रायल चल रहे हैं उसमें 2 तो सस्पेंडेड है. जो 2 ट्रायल चल रहे हैं उस पर अभी यूएस एफडीए का अप्रूवल नहीं मिला है. तो ये कह देना कि बिल्कुल अब वैक्सीन तैयार है, एकदम गलत बात उन्होंने कही. We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. पर बाइडन ने उनको बहुत पुशबैक देने की कोशिश की और कहा कि आप बिल्कुल अभी डार्क विंटर की तरफ हम लोग स्टेयर कर रहे हैं और उनके बीच में जो नोकझोंक हुई आप यहाँ सुन सकते हैं. This summer, we're about to go into a dark winter. And he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year. उनका पॉइंट ये था कि टोटल इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोरोना की क्राइसिस को उन्होंने हैंडल किया है. रोजाना 1 लाख लोग बीमार 60,000 लोग बीमार पड़ रहे हैं और 1,000 लोग रोजाना मर रहे हैं और अभी ये ट्रेजेक्टरी इसी तरह बढ़ती हुई दिख रही है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना का इशू अभी सॉल्व हो गया है? We're in a situation where there are 1,000 deaths a day now, 1,000 deaths a day. And there are over 70,000 new cases per day. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I take no responsibility initially, anyone who's responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America. फॉरेन पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज पर दोनों नेताओं के बीच में बहुत कड़ी तकरार हुई. लेकिन एक बात इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो ये कि पिछली डिबेट में भी ट्रंप ने कहा था कि कोविड के मामले में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत खराब है, अमेरिका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. आज उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर कहा कि इंडिया और चाइना जैसे देश जो हैं वो फिल्दी देश हैं और वो कचरा उगल रहे हैं, उनके कारण क्लाइमेट चेंज का इशू है, अमेरिका के कारण नहीं है. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. There were moments when Trump tried to attack Biden with allegations of corruption. उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है हंटर और आपके जो भाई हैं वो चाइना से, यूक्रेन से, रशिया से पैसा लेते हैं और आपकी पॉलिसी बहुत सॉफ्ट है चाइना के बारे में. Joe got $3.5 million from Russia, and it came through Putin because he was very friendly with the former mayor of Moscow, and it was the mayor of Moscow's wife, and you got $3.5 million. Your family got $3.5 million. इसका काउंटर उन्होंने ये कह करके किया कि भाई ट्रंप यहाँ पर तो आप $750 का टैक्स देते हैं, $750 of taxation, but in China you pay more taxes and you have a secret bank account in a Chinese bank. We learned that this president paid 50 times the tax in China, has a secret bank account with China, does business in China, and in fact is talking about me taking money. जाहिर है कि ट्रंप ने कहा कि मेरा तो बिजनेस था इसलिए वहां पर अकाउंट है, लेकिन ये राष्ट्रपति बनने के पहले की बात है. लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के एक्सपोजे में इंपॉर्टेंट एक रिविलेशन है. वो रिविलेशन ये है कि ट्रंप
के पास 2017 में उसमें करीबन $17 मिलियन थे, जिसमें से $15 मिलियन ट्रंप ने विड्रॉ किया। चूंकि ये क्लोजिंग डिबेट थी, तो यहां पर अभी इशू क्या है? इशू ये है कि जितने ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें ट्रंप इज लैगिंग बिहाइंड by almost 10 percentage point vis-a-vis जो बाइडन। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये गैप थोड़ा सा नैरो हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनमें फ्लोरिडा, जहां पर कि 29 वोट्स इलेक्टोरल कॉलेज में हैं, उस तरह के कुछ स्टेट्स अगर अभी स्विंग कर गए रिपब्लिकन की तरफ, ट्रंप की तरफ, तो ये मुकाबला और भी टाइट हो सकता है। ओपिनियन पोल पिछली बार भी आपको याद होगा कि 2016 में लोगों ने कहा था कि हिलरी क्लिंटन जीत रही हैं, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इस बार हालांकि गैप बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कह देना कि ट्रंप हार जाएंगे, ये थोड़ा अभी भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी मेल इन वोटर का इश्यू है। पता नहीं कब तक काउंटिंग चलेगी, कितने दिन मुकदमेबाजी चलेगी, इसका हमको कोई अंदाज नहीं है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ट्रंप ने इसमें अपनी सोबर इमेज को कन्वे करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों का माइंड बन चुका है। वो किस तरह से वोट करेंगे ये मोटा मोटी साफ है, और उसको देखते हुए ये लगता है कि ये मुकाबला जो है बिल्कुल बाइडन के तरफ झुका हुआ है इस वक्त। उसी में ट्रंप का आज का डैमेज कंट्रोल कितना काम आएगा पता नहीं। बाइडन क्लियरली, जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके जो कमेंट सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि बाइडन दरअसल स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर में थे। कुछ छोटे मोटे फॉल्स क्लेम या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लेम उनसे भी हुए हैं, खास करके फ्रैकिंग जैसे इश्यूज पर, लेकिन ट्रंप के झूठ करीब करीब 20 ऐसे हैं जो आज की इस मीटिंग में निकल करके सामने आ गए। 3 नवंबर को अब इलेक्शन का डे है, उस दिन पॉपुलर वोट की तो हमको जानकारी मिल जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग या उसकी पोलिंग के बारे में शायद लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये डिबेट ऐसे एंड पर खत्म हुई है, इस पॉइंट पर खत्म हुई है जहां आप ये नहीं कह सकते कि इस डिबेट की वजह से कोई स्विंग आ गया हो या कोई कहानी में नया ट्विस्ट आ गया।